Hello everyone. So today I am here to tell you about a very important topic, that is fine motor skills. Yes. So today I will be telling you about that what exactly is fine motor skills and what activities you can include in the fine motor development so that the child can write easily and learn in a very fun way. So let's start. So first I am going to tell you that what exactly is fine motor skills. Fine motor skills refers to the small muscles development which enable a child to hold a pencil, buttoning a shirt, unbuttoning a shirt, etc. It includes eye-hand coordination, eye-finger coordination and strength and control, as well as development of small muscles such as eye, hand and tongue. Children must develop the fine motor coordination to perform the daily basis or everyday basis tasks such as buttoning shirts, unbuttoning shirts, tying shoelaces, eating by themselves. So that is why fine motor skills is very important, so that child can perform the daily activities by himself. Child learn to write the numbers, alphabets or akshar, they must learn the finger strength and pencil control, because unless and until they won't have the finger strength and the control in the pencil, they won't be able to write. So we always introduce some fine motor activities before the pre-writing. So now I am going to tell you some of the activities which you can do at home before starting the alphabets, before starting the numbers, before starting the akshars. So let's start. So now let's watch some fine motor activities. The first is finger aerobics activity. Yes students, now we are going to do the finger aerobics. So kindly watch the video carefully. ये जो हम अभी फिंगर एरोबिक्स कराने वाले हैं, ये फिंगर स्ट्रेंथ के लिए आपकी बहुत अच्छी है, ताकि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग बहुत अच्छे से बन सके. सो नाउ लेट्स डू. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क द किड्स टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द टेबल. Then what they have to do, they have to just simply close their fingers. They have to open their fingers. They have to close their fingers. They have to open their fingers. This is very good exercises. ये आप पेंसिल ग्रिपिंग के पहले आप ये सारी चीज़ें बेसिक जो एरोबिक्स है ये आप करवा सकते हैं. फिंगर एरोबिक्स बोलते हैं इसे. सो ये चीज़ें आप बच्चों से करवा सकते हैं. नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 करके फिंगर क्लोज करेंगे, 1 by 1 करके फिंगर ओपन करेंगे, 1 by 1 करके फिंगर क्लोज करेंगे, 1 by 1 करके फिंगर ओपन करेंगे. सी इसमें मसल्स के थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज बच्चों के जो हैंड्स रहते हैं वो बहुत डेलिकेट रहते हैं. सो ये एक्सरसाइज थोड़े करने से उनके मसल्स थोड़े से और अच्छे होंगे. सी इन दिस वे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपको जो ये इंडेक्स फिंगर है, मीन्स ये जो थंब फिंगर है, उसमें से आपको ये सारे फिंगर्स को पुश करना है इस तरीके से, लाइक दिस. ये मैंने जो आपको 3 एरोबिक्स बताए हैं, फिंगर एरोबिक्स, ये आप डेली 1 मिनट करवा सकते हैं. इससे बच्चों की जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी. सो दीज आर द फिंगर एरोबिक्स विच यू कैन डू एट होम. नेक्स्ट इज क्ले मॉडलिंग एक्टिविटी. एक्टिविटी इज द क्ले एक्टिविटी. ये भी हमारे फिंगर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इसमें हमारे स्मॉल मसल्स जो होते हैं वो मूव होते हैं फिंगर्स के. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट यू नीड इज अ क्ले. अगर आपके पास क्ले अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज डो. आप आटा भी यूज कर सकते हैं. आई एम हैविंग क्ले, सो नाउ आई एम यूजिंग द क्ले. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्ले लेना है एंड बच्चों को बस बोलना है उसके साथ, जस्ट दे हैव टू प्ले. सी जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से फिंगर्स से बोलिए बच्चों को, इससे वो बस खेलें. सी हाउ आई एम यूजिंग माई फिंगर्स, जस्ट आई एम यूजिंग माई फिंगर्स एंड आई एम जस्ट पुशिंग, प्रेसिंग द क्ले. इसमें फिंगर्स पे थोड़ा सा जोर आ रहा है. सो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है आपके फिंगर स्ट्रेंथ के लिए. दिस
आप उनको बोल सकते हैं, कुछ बना भी सकते हैं, कुछ शेप बना सकते हैं, और जस्ट दे कैन पुश द फिंगर्स इन दिस. So this is the best activity which they can do for the finger strength, or you can ask them to make any shapes, anything whichever they like. So this is the activity which you can do with the help of clay or with the help of dough. The next is ball squeezing activity. The next activity is a ball squeezing activity. In this, what you will need a ball, and what you have to do, you have to ask the kid to hold the ball in their hands, and remember one thing, you have to hold the ball with your whole 5 fingers. See how I am using. Then उनको क्या करना है, उनको सिंपली जो आपके सॉफ्ट बॉल आते हैं, आप सॉफ्ट बॉल लीजिए, डोंट टेक द हार्ड बॉल, एंड दे हैव टू सिंपली स्क्वीज द बॉल. सी मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर रही हूँ, मेरे फिंगर्स पे स्ट्रेंथ आ रहा है थोड़ा सा. दिस इज़ वेरी नाइस एक्टिविटी. ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. ये आपको राइटिंग के पहले ये सारी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए. इसलिए व्हेनेवर द किड्स कम टू स्कूल वी अप्लाई ऑल दीज एक्टिविटीज़ बिफोर राइटिंग, सो दैट उनके जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से हो सके. सो यू कैन जस्ट, आप कभी भी उनको खेलते टाइम भी आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. जस्ट 30 सेकेंड 1 मिनट आप इस तरीके से उनको बॉल स्क्वीज करने बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें फिंगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी. Next one is peg activity. This activity which we are going to do is the peg activity. This is our peg. So what you have to do, पहले हम ये जो peg के साथ उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, हमारी फिंगर की एक्सरसाइज होती है. This is the best activity. दिस इज़ द रियली बेस्ट एक्टिविटी फॉर योर फिंगर्स, बिकॉज इसमें आप अपनी फिंगर्स जब ये ओपन हो रहा है, आप अपने इसमें फिंगर्स का स्ट्रेंथ यूज़ करते हो. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आप डायरेक्ट इस एक्टिविटी में मत जाइए. पहले जो मैंने आपको बेसिक एक्टिविटी बताई है, पहले आप उसमें जाके फिर आप इसमें आइए, बिकॉज ये थोड़ी सी हार्ड है. बिकॉज बच्चे के फिंगर्स जो बहुत डेलिकेट होते हैं वो डायरेक्ट ये नहीं कर पाएंगे. तो पहले हम उनके फिंगर्स को थोड़े से फ्री करेंगे, उसके बाद हम ये पेग एक्टिविटी पे आएंगे. सो पहले आप सिंपल पेग के साथ एक्सरसाइज कर लीजिए. होल्ड द पेग विथ योर 2 फिंगर्स, दैट इज योर इंडेक्स फिंगर्स एंड दिस वन. ठीक है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, सॉरी. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट open it, close it, open it, close it. जब आप उनको बोल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन दीजिए, दैट ओपन द पेग, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का वो भी बहुत अच्छे से आएगा. सो आस्क देम टू ओपन द पेग, देन क्लोज द पेग, ओपन द पेग, क्लोज द पेग. सी मेरे फिंगर्स पे बहुत जोर आ रहा है. सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है पेंसिल ग्रिपिंग के लिए. लिखवाने से पहले ये आप बच्चों को ज़रूर करवाएं. उसके बाद हम पेग के साथ ही हम ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. आई हैव टेकन 2 प्लेट्स. मैंने एक में पॉम रखा है. यू कैन यूज़ कॉटन बॉल्स ऑल्सो. आई हैव टेकन पॉम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द पॉम 1 by 1 and you have to shift it in the empty plate. This is very good activity for hand-eye coordination also. हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है. सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. प्लस वो अपने फिंगर स्ट्रेंथ भी यूज़ कर रहे हैं एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ यू हैव टू आस्क देम टू पिक अप द पेग विद दिस एंड देन रिलीज. पिक अप द पॉम एंड देन रिलीज. सी उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन बराबर चल रहा है. Now see, again they have to pick it up and they have to release. 1 by 1 they have to pick it all the pom and release in the empty plate. So ये बहुत अच्छी activity है, you can use it. This activity is for eye-hand coordination. So the next activity is very good for eye-hand coordination activity. ये activity आपके eye-hand coordination बच्चों के लिए बहुत अच्छी है. So what you are going to need is nothing. See, मैंने plates में कुछ मेरे पास colourful buttons थे, तो मैंने buttons रख दिए. आप simple buttons भी use कर सकते हैं, it's optional. And then what I have done, in a plain page मैंने कुछ lines draw कर दिए. Sleeping, zigzag, then this circle, then this wave. Now what the kids are going to do, they have to take 1 by 1 the buttons and they have to place it in the lines. See, जब भी वो कर रहे हैं, they are using your hand, they are using your eye. तो उनका coordination hand eye के लिए use हो रहा है.
सो ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस उनके फिंगर्स दे आर पिकिंग इट अप, देन दे आर प्लेसिंग इट. सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, यू कैन डू दिस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम स्लीपिंग लाइन में प्लेस करेंगे. 2 फिंगर्स से आस्क देम टू पिक इट 1 by 1 करके वो करें, उठा के देन दे हैव टू प्लेस इट हियर. अगेन दे हैव टू पिक इट अप. आप कुछ बड़े बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्मॉल बटन्स यूज़ किया है. यू कैन यूज़ एनी बिग बटन्स. देन अगेन मैंने यहाँ पर प्लेस किया. अगेन मैं उठा रही हूँ, अगेन मैं प्लेस कर रही हूँ. सी मैं अपने हैंड आई दोनों यूज़ कर रही हूँ. इसी तरीके से आपको स्लीपिंग लाइन कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन गो इन द zigzag लाइन. अगेन प्लेस इट ओवर हियर, स्टार्ट प्लेसिंग 1 by 1. सो इट्स वेरी गुड एक्टिविटी. इन दीज एक्टिविटी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, अब सिंपल आपके मटेरियल्स हैं विच यू कैन गेट बाई एट योर होम, और उसको आप फिर बच्चों के साथ एंगेज कर सकते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी प्री राइटिंग से पहले होती है, राइटिंग से पहले ये सारी एक्टिविटीज़ होती है विच यू शुड डू. दैट इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स, सो दैट वो धीरे धीरे अच्छे से लिखना सीख जाए. So these are the activities, so keep enjoying and keep doing. Thank you.